गुड आफ्टरनून सभी को नमस्कार। थैंक यू फॉर joining द नाफपो टेक शोकेस फोर नमस्कार सर। नमस्ते। अभी हम और 2 मिनट दे देंगे। हमारा सहयोग और सभी हमारा साथी ज्वाइन करने के लिए 2 मिनट के बाद हमने ये नाफपो और नाफपो का टेक शोकेस 4.0 के बारे में इंट्रोडक्शन दे देंगे। सभी को नमस्कार, वेलकम। सभी एफपीओ के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वी हैव रफली ओवर 85 participants who have joined today's session. This is definitely a great moment for NAFPO and for the startups. There is no single space that offers such visibility to the startups in their technology. And on that note, I would like to thank everyone who have joined, the FPOs and their representatives, and start off with the introduction with no further delay. Um, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को सॉरी, कोई किसी का लिंक काम नहीं कर रहा है, तो वी आर सॉरी एंड वी विल बी शेयरिंग more working links for our next event in the future. To begin with, मेरा नाम विजय, मैं नाफपो संस्था से के साथ प्रोग्राम मैनेजर है। और आज का प्रोग्राम प्राइमरी फोकस इज अराउंड टेक्नोलॉजी शोकेस, एंड वी हैव 3 technologies joining us. The intention of the technology showcase is to help FPOs understand what are the various technologies that are available to their disposal, and see how they can benefit from utilizing these technologies. Um, on this note, I would like to quickly tell that NAFPO is National Association for Farmer Producer Organization. We are an apex organization working towards strengthening of the FPO ecosystem. For those who don't know, NAFPO has developed multiple products, technology solutions for the FPO sector, and has constantly worked towards supporting FPO's sustainable development. And NAFPO Tech Showcase 4.0 is the fourth edition of the technology showcase programs that NAFPO has been conducting. The previous 3 programs were conducted in partnership with Agni Invest India, with Research and Innovation Circle of Hyderabad, RICH, and Marico Innovation Foundation. We've had over 10 different startups present, over 300 FPOs in the past 3 editions. And the fourth edition is bigger than ever. We've already had about 106 participants who've joined as of now. And on that note, uh, I would suggest that we move to introducing the startups. There are 3 startups today who will be presenting. First, we have Human Ventures. Human Ventures have uh, developed technology and solutions in both value chain financing and in animal husbandry. They have a lot of technology use cases available. We have with us Karthikeyan, who will represent Human Ventures.
The second technology we have today is from Neoperk. Neoperk has championed soil testing efforts via their technology, and we have the founders from Neoperk who will be presenting the technologies to the FPOs today. The third technology that we have is Keti. Keti has again, led the effort or pioneered the effort in climate controlled agriculture. They've figured out methods in controlling environment and climate impact on agriculture production, thereby improving yields and reducing risk for farmers. All three are great startups. And On that note, we are glad to have all of them present with us. Thank you, founders. सभी फाउंडर को थैंक यू आज हमारे साथ है। और 100 के ऊपर एफपीओज का रिप्रेजेंटेटिव सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सभी सीबीबीओज और रिसोर्स इंस्टीट्यूशन प्रमोटिंग एजेंसी भी हमारे साथ है। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सभी के लिए, आपका टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट करने के लिए और एफपीओस को आपका टेक्नोलॉजी के तरफ से समझने के लिए। एंड Moving on, I would also want to introduce Marico Innovation Foundation, MIF. MIF has been our long-standing partner. We have done over three editions of the Tech Showcase along with MIF. Marico Innovation Foundation is supported by the Marico Group, and they are a incubator accelerator for various agri technologies. They work with technologies working in the agri value chain. They've identified very, very prominent and technologies that hold a lot of potential in transforming agriculture. And Marico here is represented by Vartika and Arushi. Thank you, Vartika and Arushi, for joining us today. We are starting a little early because some of the FPOs had started joining the call at 2:40, 2:45 itself, which is why we did not give a lot of time for more FPOs to join, and we've started the call a little early. Good that FPOs are. We are happy that FPO representatives are punctual and are very eager to participate in the showcase. Um, I will I will request Karthikeyan from Human Ventures to share his screen and maybe with an introduction. You can give us a small introduction and you can present your screen and technology. The structure of today's call, आज discussion का structure है, आज तीन startups है हमारे साथ, Human Ventures, Kethi and Neoperk. The first presentation will be by Human Ventures. The second one will be by Kethi. Third one will be by Neoperk. And each of the technology के साथ 10 मिनट है प्रेजेंटेशन के लिए, और देर इज अ 2 मिनट क्विक गूगल फॉर्म। सभी को हमारा रिक्वेस्ट है कि एक प्रेजेंटेशन के बाद आप प्लीज ये गूगल फॉर्म आपका चैट बॉक्स में हमने शेयर कर चुका है। ये गूगल फॉर्म में आपका इंटरेस्ट आफ्टर प्रेजेंटेशन देखने के बाद, एफपीओ का सॉरी स्टार्टअप का प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपको ये स्टार्टअप का टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, ये आपको आपका एफपीओ में इंप्लीमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो आप प्लीज एंटर आपका डिटेल्स और गूगल फॉर्म में एंटर कर लीजिए प्लीज। एंड there will be totally about there will be 5 minutes of dedicated Q&A presentation के बाद ये 2 मिनट का Google form we will request the FPOs to fill. Post that there will be a 5 minute Q&A and a transition के लिए there is another 2 minute. Each startup will have 20 मिनट एक startup का presentation है, and we will have a final Q&A session, open Q&A session as well towards the end. Over to you, Karthikeyan. Thank you for being with us. ओके, Thank you. धन्यवाद विजय जी, थैंक यू। एंड मेरा नाम कार्तिकेयन है और मेरे साथ दृषा जी हैं, और कैमरा मैन नहीं है लेकिन पूर्वी जी भी है साथ में, और हम ह्यूमन वेंचर्स से हैं। क्योंकि बहुत कम समय है तो मैं फटाफट प्रेजेंटेशन पे चला जाता हूँ। तो हम लोग जिस चीज़ पे बात करना चाह रहे हैं वो हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है गोठशाला। गोठशाला जो है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है विजय जी? Yes, your screen ओके, is.
हाँ, सो ये गौशाला जो है ये किसानों के लिए और एफपीओ के लिए ये बकरी पालन से संबंधित कार्यक्रम है। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम बकरी पालन करने वालों को हम गोट शेड देते हैं और लोन दिलाते हैं उसके लिए, ताकि वो ज़्यादा बकरियां खरीद सकें, शेड लगा सकें, और लोन के साथ साथ बकरियों के लिए इंश्योरेंस भी दिलाते हैं। और ये सब हो पाता है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं इसके लिए। ये सब हम बात करेंगे इन सब चीज के बारे में। और ये सब करने के कारण किसान अगर ये करता है तो 1 लाख रुपए तक सालाना उसका आय जो है उसका बन जाता है मिनिमम। और एफपीओ अगर करता है तो 25 लाख तक का एक बिजनेस हम लाभदायक बिजनेस बना सकते हैं उनके लिए। अब अगले स्लाइड की तरफ जाते हैं हम। तो अभी आज अगर हम देखते हैं कि बकरी कैसे पाला जाता है, तो बकरियां आज के दिन में अपने ही मलमूत्र में बैठती हैं और वो झेलती हैं धूप और बारिश। अब ये सब जब होता है तो बकरियां बीमार बहुत होती हैं। बकरियां अगर बीमार होती हैं तो उनकी मौत जो होने का संभावना है वो भी ज्यादा हो जाता है। अब बछड़ों का अगर देखें तो 2 में से 1 बछड़ा मर जाता है। और अगर आप हेलो बड़द बड़द कार्तिकेयन सर, हाँ जी। आपकी आवाज बीच बीच में रुक रही है। ओके, सो अभी आ रही है आवाज सही? अभी जी आवाज हाँ सही आ रही है? सर, जी हाँ सर, हाँ सर, अभी वी सही आर है। हाँ। एबल टू सो हियर यू। बकरियों का हाँ, सो बकरियों को अगर देखेंगे आज के दिन में, तो बकरियों का जो पालते हैं आज के दिन में, वो ऐसा पालते हैं कि इस तरह रहते हैं जैसे तस्वीर में रखा है। तो वो अपने ही मलमूत्र में बैठती हैं और धूप और बारिश झेलती हैं। तो इस तरह रहते हैं तो बकरियां जो है बहुत बीमार पड़ी रहती हैं। तो बीमार पड़ती हैं तो मौत भी ज्यादा रहती है। अब इसके कारण बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उतने उतना अगर मौत होगा, बीमार पड़ा रहेगा, तो भार भी नहीं बढ़ता है और मौत होती है तो नुकसान होता है। विशेषज्ञों ने देखा है कि ये नुकसान कितना होता है। एक आम तौर पे बकरी जो है 8,000 10,000 रुपए का होता है। उतना ही नुकसान जो है ये सब बीमारियों और मौतों के कारण भार की कमी और मौत के कारण होता है। तो ये नुकसान जो है अगर हमने कम कर दिया तो पैसा बन सकता है। तो हम ये कैसे लेके आ रहे हैं ये पैसा वापस किसान के पास, यही ये स्लाइड में आप देखेंगे। तो ये हमने सबसे पहले स्वास्थ्य पे ध्यान रखा है। कैसे इंप्रूव करें, ये इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले हम शेड देते हैं। शेड जो अगर देखेंगे तो ये जमीन से ऊपर ये शेड है। बकरियां उस 1 2.5 फुट के ऊपर जो है जमीन के वो रहती हैं। और ये आपने अगर मेरा कर्सर अगर देखेंगे तो इस जगह पे बकरियां जो है जमीन के ऊपर है। और ये जो फ्लोरिंग है उसमें जो है वो प्लास्टिक की फ्लोरिंग में खड़ी हुई है। वहां से अगर मलमूत्र गिरता भी है तो वो जो है वो छेद जो है इस फ्लोरिंग पे, वो उससे नीचे चला जाता है, जमीन में 2.5 फुट नीचे चला जाता है। और फिर बाद में उसको अलग से सेग्रीगेट हो जाता है। तो इसके कारण वो बीमार नहीं पड़ती है। सबसे पहला चीज कमी हो जाती है बीमारी होने की, और इसके कारण जो है आप मौतें भी कम होती है। दूसरा चीज, अगर बीमार हो भी जाती हैं तो इस तरह का एक पट्टा जो है, जो आपने देखा है इस तस्वीर में, अब ये देख रहे हैं आप, ये गले में बांधते हैं। इसमें 2 सूचक हैं। इसमें एक सूचक जो है तापमान सूचक है। तो आपको जैसे ये तापमान पता चल जाता है कि ये बकरी जो है इसका तापमान ऊपर या नीचे है तो बीमार है करके पता चल जाता है आपको। तो ये सूचना जो है हम किसान को भी देते हैं, वेटनरी डॉक्टर को देते हैं, पैरावेट या पशु सखी, ये सबके मोबाइल फोन में बता देते हैं। और फिर ये लोग जो है उनको दवाई दे सकते हैं ये बकरियों को। और जैसे ही दवाई दे देते हैं तो फौरन इसकी उपचार शुरू हो जाती है बीमारी की। अब आम तौर पे ये इतनी जल्दी किसान को पता नहीं चलता है कि बकरी बीमार है कि नहीं है। इधर जल्दी पता चल जाता है। क्योंकि जल्दी पता चल जाता है तो जो शक्ति जो है बकरी की, वो बीमारी लड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती है, वो भार बढ़ने में ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए भार बढ़नी शुरू हो जाती है जल्दी। ये एक पहला एडवांटेज है। दूसरा जो सेंसर या सूचक है, इससे ये पता चलता है कि ये बकरी इस शेड में इस किसान के पास है। इसके कारण जो है बैंक भी कंफर्ट मिलता है उसको और बोलता है कि मैं ये लोन दे सकता हूँ। तीसरा चीज ये कि ये तापमान वाला जो सूचक है, उससे ये है कि गलती से अगर बकरी मर भी जाए तो ये पता चल जाता है कि ये तापमान इसका गिरा हुआ है। तो जैसे ही तापमान गिर जाता है तो ये सूचना देता है कि ये कैमरा यूनिट को कि आप तस्वीर लेना शुरू कर दीजिए।
तस्वीर लेके ये फिर बाद में ये तस्वीरें जो है ये भेजता है वेटनरी डॉक्टर को। वेटनरी डॉक्टर देखता है कि कौन सा ये है जो कि चल फिर नहीं रहा है जो बकरी, और वो जैसे ही सर्टिफाई कर देता है कि ठीक है ये बकरी मृत है, तो इंश्योरेंस क्लेम इमीडिएटली मिल जाता है। तो ये फायदा है कि आप इंश्योरेंस लेके आ जाते हो, लोन लेके आ जाते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि बकरी का स्वास्थ्य जो है आपने बहुत ही बढ़िया कर दिया है, और बहुत बढ़िया लेके आ गए, तो इसके कारण आपने पूरा का पूरा उसका पैसा जो है बढ़ा के दे दिया है, आय बढ़ा के दे दिया है। और यही चीज हमने ला के दिया है किसानों को। जो ये उड़ीसा में हमने इंस्टॉल कर दिया है, संभाजी नगर में महाराष्ट्र में, बीड़ और परली महाराष्ट्र में, ये सब जगह हमने कर दिया है। हमने उत्तराखंड में भी हमने इसको इंस्टॉल किया है, शेड को नहीं डालना है उधर। उधर सिर्फ हमने बकरी का ये जो गले का पट्टी है वो इंस्टॉल किया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ। गोवा में अभी हम लोग जो है गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ हम लोग ये पूरा का पूरा शेड का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। और भी जगह एफपीओस के साथ और सीबीबीओस के साथ और एनजीओस के साथ हम दूसरे राज्यों में भी हमारी बात चल रही है। अब ये पूरा का पूरा चीज जो हमने अभी बात किया है, ये शेड, ये हमने अभी तक जो है ये किसानों के हिसाब से बात किया। एफपीओ भी इस तरह ही हम कर सकते हैं। एफपीओ के साथ ये एक एक शेड जो है, आपने जो यूनिट देखा है, इसको हम जोड़ के एक एक जोड़ के, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो बच्चों का खेलने वाला चीज होता है, जैसे उसी तरह हम जोड़ जोड़ के इसको बड़ा शेड बना सकते हैं। अब एफपीओ इसमें पैसे कैसे बना सकता है, दो तीन मॉडल हैं इसमें जो हम कर सकते हैं। एफपीओ बोल सकता है कि मुझे कुछ अपना खुद का एक बकरी नहीं लगाना है, मुझे खुद का शेड नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ किसानों को, मेरे किसान मेंबर को, उनको जो है बकरी का शेड लगाने को देना है। उसमें से अगर मेरे को कमीशन मिलता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, तो वो एक मॉडल है। दूसरा एक मॉडल हो सकता है कि मैं खुद, एफपीओ बोले कि मैं खुद भी अपना एक शेड लगाना चाह रहा हूँ, किसान के लिए तो मैं प्रोवाइड करना ही चाह रहा हूँ शेड, लेकिन मैं खुद भी एक लंबा एक शेड बनाना चाह रहा हूँ और उसमें मैं अपनी बकरियां डालना चाह रहा हूँ, तो वो भी एक मॉडल बना जा सकता है। और तीसरा ये कि ये बोल सकते हैं कि ठीक है, कुछ किसान तो हैं जिनको मैं शेड लगाने को दे सकता हूँ, और मैं खुद भी अपना एक शेड लगा सकता हूँ और बकरियां डाल सकता हूँ। और तीसरा, मेरे पास ऐसे किसान हैं जिनके पास इतना जमीन नहीं है या उनके पास इतना आय नहीं है कि वो जो है लोन ले सकेंगे, तो उनके लिए मैं चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा जो है ये शेड में, मेरे मेरे शेड में थोड़ा और जगह लेके मैं उनको किराए पे बकरियों को रखने के लिए दे सकता हूँ। तो ये तीन मॉडल हैं, और ये तीनों मॉडल में आय बनाने का जो है एक तो यही है कि बकरियां जो लगाई है उसमें सबसे पहले तो आज के दिन में मांस के हिसाब से पैसा मिलता है, यानी आप बकरियों को बेचते हैं और वो कसाई के पास जाता है और फिर बाद में मांस के हिसाब से पैसा मिलता है। दूसरा जो आय जो हम लेके आ सकते हैं अगले फेज में, वो ये है कि आप उसको खाद के लिए जो है जो लीद बनता है बकरी के खाने के बाद, वो जो लीद है और वो जो खाद है उससे आप पैसे बना सकते हैं। और तीसरा जो है, आप जब ज्यादा शेड बनने शुरू हो जाते हैं, ज्यादा बकरियां आनी शुरू हो जाती है, तो एफपीओ जो है प्रोसेसिंग के लिए लगा सकते हैं इक्विपमेंट, और फिर मिल्क रिलेटेड जो भी है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो मिल्क के रिलेटेड है वो भी हम बिल्ड कर सकते हैं। ये मैन्योर और मिल्क जो है उसके लिए थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग इक्विपमेंट है, उसके लिए जो है हमको एनेबलमेंट एफपीओ को करने के लिए वो भी हम तैयार हैं करने के लिए। अब किसान के लिए अगर एक शेड देखें तो मोटा मोटी इस तरह दिखता है कि करीब करीब 1.25 लाख रुपए, 4.25 लाख रुपए के करीब का शेड और टेक्नोलॉजी और इंश्योरेंस और आपका जो बकरी है सबका मिला के ये खर्चा करीब करीब आता है इतना। अब ये जो है हर इलाके के हिसाब से अलग अलग रहेगा, क्योंकि हर जगह पे प्रजाति अलग अलग होगी बकरी की, और उसके हिसाब से कितनी बकरियां देनी है ताकि बैंक आपको लोन दे सके वो अलग रहेगा। लेकिन मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो सब जगह 1 लाख के ऊपर का इनकम आपने अगर देखा होगा ये इतना आएगा लोन देने के बाद, फिर बाद में उसका आय जो है अलग अलग रहेगा, लेकिन तीसरे साल के बाद डेफिनेटली 1 से 1.25 लाख से 2 लाख रुपए तक का जो है आपका पैसा बनना शुरू हो जाता है लाभ जो है। और 1.5 से 2 लाख रुपए जो है, 1 से 2-3 लाख रुपए तक आपका आराम से बनता है इनकम किसी भी इसमें। तो ये इसी तरह हमने इंस्टॉल किया है। ये शेड में ना सिर्फ आप बकरियां पाल सकते हैं, मुर्गियां भी पाल सकते हैं। अगर कुछ दिनों के बाद इसको सिर्फ ऊपर करना है, और मुर्गियों के लिए जगह है 100 मुर्गियों के लिए। और इसमें अगर आपको मछली पालन करनी है तो बगल में एक एक और टैंक लगाया जा सकता है, उसके लिए भी हमारे पास काबिलियत है। मुर्गियों के लिए अलग से शेड है, उसके लिए भी हमारे पास काबिलियत है। और एक शेड जो है, इसी शेड पे ऊपर आप सोलर लगा सकते हैं। ये सब पे हम लोगों की काबिलियत है कि हम जो है आपको पूरा का पूरा सपोर्ट कर सकते हैं। आपको बकरी खरीदना है
या खरीदवाना है, वापस जो बछड़े पैदा हुए हैं उनका खरीदवाना है, या वापस बकरी आपको देना है शुरुआत में, वो सब भी हम दे सकते हैं। उसी तरह मुर्गी के साथ भी वैसा ही कर सकते हैं, मछली के साथ भी वैसा ही कर सकते हैं। तो ये सिर्फ हमने बात किया बकरियों के बारे में। ह्यूमन वेंचर्स जो है सिर्फ ये नहीं करता है, ह्यूमन वेंचर्स एक एग्री फिनटेक है। ये बेसिकली क्या करता है कि वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स मुहैया कराता है, और वो लोन्स जो कि आमतौर पे मुश्किल होता है फार्मर और एफपीओ को जाके कन्विंस करने में बैंकों को, और इसी कारणवश बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे नहीं पाते हैं इनको लोन्स। तो क्योंकि मैं और मेरे जो फाउंडर हैं कार्तिक, दोनों जो हैं करीब करीब 25 साल का एक्सपीरियंस है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो हम लोग जो हैं समझते हैं कि क्या बैंकों को चाहिए, किस तरह उनको कन्विंस करना पड़ता है, किस तरह का बिजनेस प्रपोजल उनको देखना होता है। और क्योंकि फार्मर और एफपीओ को भी हम समझते हैं, क्योंकि इतने दिन से हम घूम रहे हैं काफी फार्मर्स और एफपीओ को मिलने के लिए, तो हमें पता है कि उनको कैसा कैसा रिक्वायरमेंट है। अब तो हमने इस तरह का एक टेम्पलेट भी बनाया है कि फार्मर जिसका क्रेडिट स्कोर भी पुअर है उसके लिए भी हमने लोन लेके लाके दिला दिया है। तो किस तरह के लोन्स हमने सक्सेसफुली दिलाया है, हमने क्रॉप स्पेसिफिक, जो चिली है, टर्मरिक है, यहाँ पे स्केल ऑफ फाइनेंस से ज्यादा अगर लोन चाहिए वो हमने करके दिया हुआ है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक किया हुआ है, डेयरी इंडस्ट्री को आज के दिन में लोन्स नहीं दिया हुआ है, वो भी हमने दिला के दिया है। हमने सोलर बायोफर्मेंटर्स, बायोफर्मेंटर्स मतलब जो कि आपका गोबर से आपका जो खाद बनता है, वो उसके लिए भी लोग सोचते थे कि वो एक कॉस्ट सेंटर है, उसमें कैसे लोन दिया जा सकता है, वो भी हमने दिलाया हुआ है। एफपीओ के लिए फाइनेंसिंग बहुत अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी कराया हुआ है। एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसमें पेड़ लगा के आप जो है उसमें काफी साल के बाद उसमें आय आएगा, उसके लिए ज्यादातर लोन मिलना मुश्किल होता था, क्योंकि देर के बाद आपका आय बनता है। वो भी हमने उस पे भी हमने दिलाना शुरू कर दिया है। तो ये हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, अगर आप समझेंगे, ह्यूमन वेंचर्स का है ये आखिरी स्लाइड में। और गोडशाला, ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको समझाया, टेक्नोलॉजी के कारण हमने एनेबल करके दिलाया है। इतना ही है, और मैं चाहता था कि आप लोग ये पूरा समझें और फिर चाहेंगे कि हम आपके साथ काम करें, सिर्फ गोडशाला के साथ नहीं, बाकी और भी प्रोजेक्ट्स अगर कुछ है कि जहाँ पे भी आपको लोन सोन की जरूरत होगी किसी भी तरह के प्रोजेक्ट के, उसके लिए हम तैयार हैं आपके साथ काम करने के लिए। धन्यवाद। Thank you, Karthikeyan sir. This is a wonderful presentation. On behalf of everyone, इतना clarity हमको मिला regarding both animal husbandry, goat rearing, and the various solutions that Human Ventures give. It is quite encouraging, and थैंक यू, happy to धन्यवाद। have heard from you on this. अभी सभी के लिए मैंने टाइम, अभी आपके पास ये फॉर्म हमने शेयर कर रहा है ये चैट बॉक्स में। ये प्लीज आपने आपको टाइम मिलने के समय प्लीज फिल कर लीजिए यहाँ। और किसी के पास किसी प्रश्न है तो कार्तिकेय जी के पास पूछने के लिए आप प्लीज, द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स फॉर द नेक्स्ट 5 minutes। हाँ जी, सुशांत जी। बहुत ही बढ़िया था प्रेजेंटेशन। धन्यवाद। मुझे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए अभी। जैसे हेफर है, हम लोग कुछ जगह पे इम्प्रूव्ड गोट रियरिंग का प्रैक्टिसेस शुरू कर रहे हैं, जैसे आपका रेज्ड प्लेटफॉर्म वगैरह हो गया। तो क्या ये फुल पैकेज में ये सर्विसेज अवेल किया जा सकता है, या फिर वो जो गले का पट्टा या कुछ बिट इन पीसेस में भी हम लोग करना ले तो है ही, सकते हैं? अपने को ही करना है कोई। तो देखिए, हम जो है ये जहाँ पे लोन चाहिए होता है वहाँ पे बैंक जो है पूरा का पूरा पैकेज ही मांगता है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि नहीं, मेरे को सिर्फ कुछ ही पैकेज चाहिए, जैसे अभी आप बोलेंगे कि मेरे को इंश्योरेंस चाहिए, तो इंश्योरेंस वाले हमसे बोलेंगे कि आप पट्टी लगाइए, तो पट्टी और सिर्फ इंश्योरेंस करना है तो वो भी हम सेपरेटली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें लोन नहीं मिलता है, सिर्फ इतना ही दिक्कत है और कुछ नहीं है। तो हमको सिर्फ ये समझना पड़ेगा, सुशांत जी, मैं आपका नंबर अगर चाहिए तो मैं विजय जी से मैं बात कर सकता हूँ और ले सकता हूँ उनसे, और फिर हम ये बात कर सकते हैं कि आपको किस तरह का रिक्वायरमेंट है। तो हम ये अलग अलग जो आपका जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इसको डेवलप कर सकते हैं।
तो बैंक के पास अगर लोन लेके जाना है तो ये पूरा का पूरा पैकेज होता है। अगर आप इंश्योरेंस बोलेंगे तो इंश्योरेंस प्लस टैग होता है। अगर आप बोलते हैं नहीं मेरे को इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए सिर्फ टैग चाहिए, तो वो भी किया जा सकता है। तो वो पूरा निर्भर करेगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। थैंक यू। विजय जी, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। बताइए सर। जितने भी प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, अगर प्रेजेंटेशन और कांटेक्ट नंबर या मेल आईडी वगैरह हाँ, मिल शेयर जाएगा करना सर। हमने वी कभी। विल इंश्योर आप सभी के पास ये तो तीनों स्टार्टअप का कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के पास है, हम इंश्योर करेंगे। और आपका डिटेल्स भी आप फॉर्म फिल करने के बाद डेफिनेटली। आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और नंबर भी स्टार्टअप्स के साथ हम शेयर करेंगे। वो डायरेक्टली भी आपके साथ बात करके ये नेक्स्ट स्टेप्स एंगेजमेंट के लिए हम फैसिलिटेट करेंगे सर। और कोई थैंक यू। प्रश्न है सर, किसी पार्टिसिपेंट्स के पास कोई प्रश्न है कार्तिकेय जी के लिए जी और जी ह्यूमन? सर। जी हाँ। सर, मैं श्रीकांत प्रसाद बोल रहा हूँ, सरिया क्षेत्र महिला फार्म प्रोड्यूसर कंपनी गिरिडीह। हाँ सर मैं जी। बोल रहा था कि जैसे यदि कोई बकरी बकरी पालन करना चाह रहे हैं तो एक ही फार्मर, या तो जिस फार्मर के पास 100 बकरियां रख सकते हैं, कि अलग अलग मेरे पे 10-10 करके, 10, 5, 20, उसको हम कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं? जैसे बैंक द्वारा लोन कैसे मिल सकता है? कितने कितने कम से कम मिल सकता है उसको? देखिए आप इसके पास किसान के पास पहले से ही बकरियां हैं ये बोल रहे हैं कि नहीं है उनके पास? उनके पास कुछ बकरियां हैं, बहुत लोगों के पास कुछ बकरियां नहीं है। यदि उनको नया स्टार्टअप हम करवाना चाह रहे हैं, हाँ। नया शुरुआत, हाँ तो कुछ हाँ बकरियां हैं इनके पास। तो बहुत लोगों देखिए, के पास कुछ बकरियां नहीं भी। हाँ तो जैसे अभी संभाजी नगर में हमने ऐसा ही किया है कि हमने क्या किया है, जो लोगों को दिया है उन लोगों के पास या तो किसान बहुत बकरियां ही नहीं है, या फिर कुछ बकरियां हैं जो कि 3, 4, 2, 3 ऐसे बकरियां हैं, उन लोगों को हमने दिया है। तो हमने बैंक को जाके बोला कि आप 10+1 दीजिए उनको बकरियां। तो वो उसके हिसाब से पूरा का पूरा शेड 10+1 बकरियां, वो बकरियां भी हम ही दे रहे हैं उनको, दूसरे इसमें वो पूरा का पूरा लोन अमाउंट में ऐड हो जाता है। और फिर टेक्नोलॉजी दे रहे हैं वो बकरियों के लिए, जो गले की पट्टी में लगा रहे हैं वो कैमरा वाला जो भी है, और गले की पट्टी और इंश्योरेंस, ये पूरा का पूरा चीज जो है हम उसको लगा के दे रहे हैं। और इस हिसाब से आपने जैसे पूछा है, यही चीज हमको करना पड़ेगा आपकी जगह पे भी। वो 10 होगा कि 15 होगा वो निर्भर करेगा कि कौन सी प्रजाति है आपके यहाँ पे, वो मेरे को वो पूरा एक कैलकुलेशन करके फिर बताना पड़ेगा कि इतना करने पे बैंक जो है वो बोलेगा कि हाँ ये इसको मैं लोन दे सकता हूँ। यहाँ तो सर ब्लैक बंगाल चलता है मालूम है। गिरिडीह में। मालूम है। ब्लैक बंगाल। ओके हाँ सर। सर बोल रहे थे जैसे एक बकरी का लगभग कॉस्ट कितना पड़ जाता सारा इंश्योरेंस वगैरह लेके तो टोटल? मैं क्या करूंगा श्रीकांत जी कि आपकी जगह के अनुरूप और आपके यहाँ पे कौन सी प्रजाति है उसके अनुरूप मैं आपको एक पूरा एक प्रपोजल ही बात करके बता दूंगा। मैं आपका नंबर विजय जी से लेता हूँ और आपके ओके साथ सर। बात करता हूँ, तो उसमें ओके। जो है वो अलग अलग ये रहेगा, तो आपको मैं पूरा डिस्कस करके बताता हूँ आपको, ठीक है? ओके सर। ओके। हाँ जी। और देर इज जस्ट 2 more minutes, एनी और एक क्वेश्चन मैक्सिमम हम कार्तिकेय जी के लिए इस सेशन में अगला प्रेजेंटेशन के पहले एक और प्रश्न के लिए समय है। किसी के पास प्रश्न है तो अभी पूछ मैं लीजिए। मैं हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड हाँ गुड इवनिंग। इवनिंग। सर ऐसा है कि जैसे कि कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में मोस्टली किसान जैसे कि बकरी पालन कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए कंबाइन शेड तैयार करवा सकते हैं ना? कंबाइंड मतलब क्या बोल रहे हैं आप? जैसे कि लगभग एक क्षेत्र में होता है कि मोस्टली बकरी पालन कर रहे हैं या 5 से 10 किसान कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या एक ही शेड रहेगा या अलग अलग बनेंगे किसान के नाम पे? देखिए शेड जो है, बड़ा शेड करना है 2 शेड जोड़ के तो वो किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ओके। लेकिन ओके। अगर आप बोलोगे कि ठीक है, देखिए बैंक के पास अगर ये लोन से करना है तो ये समझना होगा कि लोन के लिए जब जाते हैं तो लोन के लिए आज के दिन में बकरी के लिए लोन लेने जाओगे आप तो वो मुश्किल होता है। आपको ये समझाना पड़ता है कि क्यों ये है, यही यही चीज हम ह्यूमन वेंचर्स के लिए कन्विंस कर पाए हैं कि ये आप लोन इसलिए दीजिए क्योंकि ये शेड है, ये शेड में बकरियां हैं आपको हमेशा दिख रही है, और ये जो बकरी है ये स्वस्थ है कि नहीं है ये भी आपको दिख रही है। तो ये पूरा जो पैकेज है उसके कारण लोन मिल पा रहा है आपको। तो अब जब हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है, आपने बोला कि ठीक है सपोज कीजिए 20 बकरी है जिसमें से 10 हमने दे दिया है,
और 2 शेड लगाए हैं, सपोज कीजिए, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, एक जी उदाहरण दे रहा हूँ। तो जी आप सर। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि ये 2 शेड का जो है पैसा ये 10 बकरियों से आ पा रहा है कि नहीं, ये हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। नहीं है तो इसको कैसे 20 बकरियों से करना है वो हमको देखना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि इधर मैं नहीं बोलना चाहूंगा, तरीका है ये करने का। मैं सिर्फ आपका नंबर लूंगा, जो भी ये सुन रहे हैं, मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि ये पॉसिबल है, कैसे करना है। इसके लिए मैं, जो भी जिसको भी इंटरेस्ट है, नंबर मेरा जो है विजय जी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। विजय जी आप म्यूट पे हैं। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। और सभी एफपीओ के लिए थैंक यू। ये प्रश्न और जवाब सभी के लिए यूजफुल है। सिर्फ किसने पूछा है उसके अलावा सभी यहाँ है, 150 एफपीओ, वो सब के लिए ये बहुत यूजफुल है। अभी आई वुड रिक्वेस्ट, केती से हमारे साथ है को होस्ट और को फाउंडर है। I will request Katie to come on board and present their solution. अभी सभी एफपीओ के लिए हमारे साथ है दूसरा स्टार्टअप या टेक्नोलॉजी, खेती के नाम का संस्था है। और खेती ने क्लाइमेट क्लाइमेट कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर और यील्ड इंप्रूवमेंट या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। आप सभी का, ये बारिश हो रहा है नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा धूप है, पेस्ट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, इसी के बारे में आपको सॉल्यूशन दे रहा है। और आई वुड रिक्वेस्ट the co-founder from Keti to present. Thank you, sir, for being with us. Over to you. Okay, thank you so much, Vijay ji. Vijay ji, can you share slides? I have emailed you. I have some challenge. No problem, sir. No problem. One second. Let me just check my email. Give me 1 minute. शेयर करो, मैं इतने। और मैं को फाउंडर नहीं हूँ, सो मेरा नाम इनस खान है और मैं खेती का इंडिया ऑपरेशंस देखता हूँ पूरा। सो खेती, जैसे विजय जी ने बताया कि ये छोटे फार्मर्स के लिए बनाई गई है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है वो क्लाइमेट रेजिलेंट कैसे हो, क्योंकि जो आज क्लाइमेट की मौसम की मार है, जो अभी देख रहे हो, अनसर्टेन रेन आ जाती है या ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उससे जो परेशान है वो किसान है, छोटा फार्मर, जो 5 एकड़ से कम वाला है या 10 एकड़ वाला है। तो खेती का विजन है कि नेक्स्ट 10 ईयर में 1 मिलियन फार्मर को कैसे क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मर और स्मार्ट फार्मर बनाया जाए। उसी विजन को लेके खेती काम कर रही है। एंड विजय जी शेयर करेंगे स्लाइड। Yeah, 1 second. I hope my screen is visible to all. सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस, अभी दिख रहा है सभी इसको। दिख रहा है। यस यस दिख रहा है, दिख रहा है। जैसे मैंने बताया कि खेती का विजन है कि ईच फार्मर स्मार्ट फार्मर बने और क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मर बने। उसी विजन के साथ खेती आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट स्लाइड विजय जी। सो अभी आप देखेंगे कि क्यों ये चाहिए, ये क्लाइमेट से हो क्या रहा है। सो अगर जितने भी स्मॉल फार्मर हैं, जो अगर आप देखो अराउंड 55,000 करोड़ ईयरली उनका पेस्ट अटैक से नुकसान होता है, या तो पेस्ट आ जाता, क्रॉप खराब हो जाती है, उनको स्प्रे करना होता है। एक्सेस हीट की वजह से 10% उनका यील्ड भी रिड्यूस हो रहा है। वाटर है, लास्ट 10 ईयर में जो 60% तक कम हो गया है। और 80 लाख जो फार्मर है और या जो उनमें काम करते हैं, वो ईयरली लाइक उनका जो लाइवलीहुड है वो लॉस्ट हो जाता है एक रेन की वजह से। सोचो, ये सबको देखते हुए खेती ने डिसाइड किया कि नहीं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए कुछ किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड विजय जी। जो खेती का जो आपको ये दिख रहा है ग्रीन हाउस सबसे छोटा, ये 240 स्क्वायर मीटर का है। इसके 3 चीजें इसको लगाने से होती है कि ये डबल इनकम करता है, मिनिमम 2 to even 7 टाइम तक उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एंड वो क्लाइमेट से फार्मर को बचाता है और ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ किसान को लेके जाता है। नेक्स्ट विजय जी। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे कि जब धूप का टाइम रहता है,
अप्रैल में, जून में। सो बाहर और अंदर का फसल का आप देखेंगे कितना डिफरेंस है, क्योंकि ये 5 डिग्री टेम्परेचर को भी कम करके रखता है। कितना फर्टिलाइजर जाना चाहिए जो ड्रिप के थ्रू उतना ही जाता है। वीड नहीं रहते हैं, पेस्ट अटैक नहीं होता है, वायरस ये सब नहीं आते हैं। तो उस समय ये अप्रैल और मई का पिक्चर है। सो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी जो खेती जो हमने पहली स्लाइड में बताया था क्यों बना है, जो इतना नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से हम कैसे बचा सकते हैं। तो जो फार्मर इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है वो 90% तक पेस्ट से अपनी क्रॉप को बचा सकता है। 5 डिग्री जो हीट रहता है उसको ये कम करके रखता है। 100 किलोमीटर रफ्तार से जो हवाएं चलती है उससे ये बचाता है। और इसमें पानी की बहुत कम कम जरूरत रहती है, बहुत कम। सो ये सब सोल्यूशन खेती का टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू फार्मर प्राप्त करता है और बाकी जो नुकसान हो रहा है उससे बचता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी जब खेती ने क्यों सोचा है, सो अर्लियर जब हम इस काम को करना चालू किया तो हमने देखा कि ये ग्रीन हाउस या पॉली हाउस बहुत कॉस्टली है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता। सो 2 लाख तक इसकी कॉस्ट थी, जिसको हम लेके अभी 99,000 तक लेके आए हैं। सो कॉस्ट को भी हमने कम किया, जिससे फार्मर इसको अडोप्ट कर सके। नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद फार्मर के क्या करेगा, तो ये स्ट्रक्चर है, इसकी लाइफ है 10 से 12 साल। और ये जीआई पाइप का ही रहता है, नेट्स रहते हैं। सो पर ईयर फार्मर आराम से इसका ब्रेक इवन करता है, 1 लाख रुपए कमाता है। कई फार्मर है जो 2 लाख, 3 लाख, इवन 4 लाख तक भी कमाते हैं, जो नर्सरी वगैरह करते हैं। और ये पानी को सेव करता है, और यस 100% इनकम तो इंक्रीज करता ही है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप देखो, ये 3 फार्मर हैं, एक धर्मेंद्र कुमार है यूपी का, एक सुधाकर पाटिल है एमपी का, और एक है विनीत कुमार बिहार का। ये 240 स्क्वायर मीटर से ये पिछले अप्रैल में लगाया था इनने 2000। तो एक साल के अंदर एक ने 4,75,000 रुपये कमाए, एक ने 3,94,000, एक ने ऑलमोस्ट लाइक 4 लाख। ऐसे फार्मर में, जबकि मिनिमम फार्मर अगर जो फर्स्ट टाइम कर रहा है तो वो आराम से 1 लाख रुपए कमा सकता है। और जो फार्मर स्मार्ट फार्मर हैं, जो नर्सरी कर रहे हैं, तो उनकी इनकम इस तरीके से आगे जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, खेती क्या करती है कि ये सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं लगाती है, तो स्ट्रक्चर लगाने के साथ साथ हमारा एक एफएसए होता है, फार्मर सर्विस एसोसिएट, जो बीएससी एमएससी रहता है ट्रेंड। और 1 साल तक फार्मर को वो सर्विस भी देता है कि कैसे लगाना है, कैसे करना है, किस स्टेज पे कौन सी दवाई देनी है, या कुछ आ भी गया है तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है। तो इट्स लाइक फुल फ्लेज इंस्टॉलेशन, क्वालिटी से लास्ट तक कैसे करें, तो वो सर्विस भी इसके साथ रहती है, जिससे फार्मर अगर बीच में कोई रोड ब्लॉक आए तो उसको इमिडिएटली शेयर कर सके। And हमारा एक कॉल सेंटर भी है जिसमें नंबर लगा रहता है, अगर उस पर फार्मर डायरेक्ट कॉल करे तो उसको रीजनल लैंग्वेज में विद इन लाइक 2 आवर में उसको कॉल बैक भी आता है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक हमारे 7,000 फार्मर हैं, और साथ अभी एक स्टेट और बढ़ गया है, आंध्रा, वहां पर भी हैं। और गोल एक ही है कि 1 मिलियन फार्मर को 2033 तक कैसे अचीव किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड। सो सबसे अच्छी चीज जो इस खेती में, इसको खेती रक्षक हम बोलते हैं, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का 90% जो प्रोड्यूस है वो आता है, क्योंकि ये पेस्ट और वायरस और कीट इनसे बचा रहता है। जितना फसल को न्यूट्रिएंट चाहिए उतना ही उसको मिलता है, उतना ही पानी, तो ग्रोथ इवन होती है। उसका साइज एक जैसा आता है, तो वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का आता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने पहले बताया, में। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ पिक्चर्स हैं, आप देखोगे नर्सरी के, ये टमाटो की नर्सरी है। नेक्स्ट स्लाइड। ये कॉलीफ्लावर चिली की सैम्पलिंग्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैरीगोल्ड नर्सरी है। नेक्स्ट स्लाइड। ये जी, ये हमारे पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
यस, तो जॉइन अस इन इग्नाइटिंग। सो फार्मर, हर स्मॉल फार्मर को क्लाइमेट रेजिलेंट और स्मार्ट फार्मर बनाने के लिए रिक्वेस्ट है। वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। थैंक सर यू नस जी, बहुत एक क्वेश्चन। अच्छा प्रेजेंटेशन है। ये प्रेजेंटेशन तो वेरी इंस्पायरिंग एंड बहुत डिटेल्ड है। सर, मैंने सभी एफपीओस को भी रिक्वेस्ट है कि आपने गूगल फॉर्म हमने चैट में शेयर किया, वो प्लीज़ फिल कर लीजिए। और ये खेती का सॉल्यूशन है, बहुत इनोवेटिव और यूजफुल सॉल्यूशन है। हम सभी ने क्लाइमेट और पेस्ट के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है हमारा खेती में। वैसे लिए ये खेती बाड़ी का काम तो क्लाइमेट रेजिलिएंट होना है, वो हमारा प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगा। वैसे लिए हमारा रिक्वेस्ट है कि ऐसा एक सॉल्यूशन को आप सभी ने कंसिडर कर लो, ये बहुत यूजफुल है। और किसी के पास कोई भी प्रश्न है तो अभी इनस इनस जी हमारे साथ है, पूछ लीजिए। आपका ये खेती का प्रोडक्ट के ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज अभी पूछ लीजिए। फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड सर सर सर, मैं श्रीकांत प्रसाद बोल रहा हूँ, सरिया गिरिडीह झारखंड से। सर क्वेश्चन ये है कि इनपुट तो हम लोग सर कर लेते हैं, खीरा, ककड़ी, चिलीज, ऑनियन वगैरह कर लेते हैं। सर आउटपुट में बहुत सारा परेशानी आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आउटपुट हम लोग यहाँ से मिलना चाहिए, आउटपुट तो ले लेते हैं, लेकिन बाजार का जो रेट होता है वो डिफरेंस हो जाता है। ये सुविधा हो पाएगा सर आप लोग से? नहीं सर, देखो ऐसा रहता है कि यस, ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है। फार्मर जस्ट लाइक मैं फार्मर सन हूँ और पिछले 15-16 साल से फार्मिंग ही किया है। तो मेरा फादर ऐसे बोलता था, जो वेजिटेबल है, अभी हिंदी में बात करेंगे तो वेजिटेबल ऐसे बोलती है कि तू मुझे बेच, नहीं मैं तुझे बेचूंगी। तो डेफिनेटली वही है कि इसमें मार्केटिंग बहुत क्रिटिकल है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये क्लस्टर्स में होना चाहिए। और आज एफपीओ जो जिस प्लेटफॉर्म में हम बात करें, क्योंकि एफपीओ क्या रहता है, 1000 फार्मर के साथ काम करता है, 500 फार्मर के साथ करता है। अगर 100 फार्मर लेट से इसी स्ट्रक्चर को लगाते हैं और एक जब प्लानिंग के साथ वो क्रॉप करते हैं, जैसे शिमला मिर्च किया, खीरा किया, तो डेफिनेटली उसके लिए मार्केट लिंकेज भी अवेलेबल है। अब दिक्कत क्या आती है कि लेट से एक फार्मर कर रहा है तो एक फार्मर को अपने हिसाब से ही देन बेचना पड़ता है। बट यस, अगर जैसे 20 फार्मर ने किया है, 30 ने, तो बायर्स वहीं आके लेके भी जाता है। यस, तो आई थिंक। लेकिन सर ऐसा ऐसा हम लोग सर करवाए थे धनबाद में, लेकिन हाँ सर हाँ, जैसे हम लोग उतने बायर 20-30 रहता है, लेकिन जिस जैसा हम लोग को लोकल वेंडर ही कांटेक्ट हो पाता है, जो लोकल रहता है वो, और बाजार और जो मुंबई वगैरह में चाहे अदर भी स्टेट में जो सब्जी का रेट काफी महंगा होता है। हम चाह रहे हैं यदि मेरे पास टमाटर काफी 1-2-5 ट्रक हो जाता है जो टमाटर पर सड़ रहा होता है, हम वो करेक्ट। चाह रहे हैं कि उस सॉस वाले कंपनी से कांटेक्ट किसी तरह हो जाए, जो कि हम लोग टमाटर का जो यहाँ पूरा पड़ा रहता है, कभी प्याज पड़ा रहता है, प्याज का रेट कभी गिर जाता है, तो वैसे हम चाह रहे हैं कि सर हम लगभग। वो कनेक्ट्स हैं, आप मेरा नंबर विजय जी से ले सकते हो। कुछ है तो हम जी आपको कनेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ओके थैंक यू श्रीकांत जी। और किसी के पास सर। कोई और प्रश्न है खेती का सॉल्यूशन के बारे में, ग्रीन हाउस के बारे में? और एक बहुत अच्छा विषय है कि खेती तो पहले ग्रीन हाउस सेटअप करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, 2 लाख के आसपास। वो तो सही है, और अभी तो वो सस्ता हो गया। अभी 1 लाख के आसपास, 99,000 में एक 240 स्क्वायर मीटर का ग्रीन हाउस तो कॉस्ट इफेक्टिव है। एंड it is a good initiative. Thank you, Ines ji. थैंक यू सो मच विजय फॉर द अपॉर्चुनिटी। एंड सभी एफपीओ से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर कभी भी कोई क्वेश्चन है या ऐसा कुछ काम करने का है, सो हम ऑलमोस्ट लाइक यूपी में हैं, एमपी में हैं, झारखंड में हैं, बिहार में हैं, आंध्रा, तेलंगाना। सो प्लीज रीच आउट। और अगर कहीं पे ऐसा है कि 100 फार्मर करना चाहते हैं तो हम दूसरे नए स्टेट में भी आ सकते हैं। सो प्लीज आप विजय जी नंबर आप शेयर कर दीजिएगा और स्लाइड्स, एंड हैप्पी टू वर्क टुगेदर। थैंक यू इनस इनस जी। और दूसरा बात है कि सभी एफपीओ के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है। 5th of November
और एक एफपीओ शोकेस इवेंट है। आज तो चल रहा है ये नाफपो टेक्नोलॉजी शोकेस इवेंट। यहाँ नए नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनने के लिए और आपका खेती बाड़ी काम में आपको सहयोग करने के लिए ये टेक्नोलॉजी सब हम शोकेस कर रहा है। ये दूसरा शोकेस इवेंट हम कंडक्ट कर रहे हैं, नाफपो एफपीओ शोकेस। और 5 नवंबर ये शोकेस आई कार्ट के साथ हमने शेड्यूल किया है। और उस सेशन में आपका और ज्यादा अपॉर्चुनिटी एफपीओस को आउटपुट मार्केटिंग, आपका कमोडिटी को बेचने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी यहाँ ये प्राइमरी सेशन है, ये टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट करने के लिए ही हमने कर रहा है। सो ये मैंने सोचा आप सभी के लिए शेयर करने के लिए जरूरत है। और एक और प्रश्न के लिए समय है हमारे साथ। किसी के पास कोई एक प्रश्न है तो बताइए प्लीज। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक खेती का टेक्नोलॉजी तो बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी और सभी को समझने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी ने एक्सपीरियंस कर चुका है पेस्ट और धूप और के बारिश का प्रॉब्लम्स। और ये बहुत सिंपल सॉल्यूशन बट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक और नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट दैट बिफोर वी मूव टू द अगला प्रेजेंटेशन के पहले हम सभी को और एक बार रिक्वेस्ट कर रहा है, एक गूगल फॉर्म हमने चैट में शेयर किया, वो आप प्लीज फिल कर लीजिए। ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन के साथ आपको हम कनेक्ट करेंगे। आज 3 स्टार्टअप हम हमारे साथ है। उसके साथ हम आपको कनेक्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप प्लीज ये गूगल फॉर्म शेयर कर लीजिए, उसके लिए मैं 1 मिनट सभी को दे देंगे। और भी समय मिलेगा। और थर्ड प्रेजेंटेशन नियोपर्क का है हमारे साथ। नियोपर्क का भी आप देखने के बाद भी फिल करना पॉसिबल है। बट नियोपर्क भी बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। ये सॉइल टेस्टिंग के बारे में ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपका मिट्टी के बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा नियोपर्क का टेक्नोलॉजी के साथ। आफ्टर अ मिनट वी विल मूव टू नियोपर्क्स प्रेजेंटेशन। विजय जी, एक्चुअली ये ये दिखा रहा है कि काइंडली साइन इन, और साइन इन करने के लिए वो अलाउ नहीं कर रहा है। तो सर मैंने आपका अपना नंबर गूगल, कोई भी गूगल पता नहीं, हो तो आईडी नहीं इन रहा करना है। पॉसिबल है सर? कुछ तो नहीं हो रहा है। टेक्निकल कुछ ग्लिच आ रहा है, तो मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है। तो ये कांटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। दे दिया। चैट वन बॉक्स में मैंने सेकेंड सर, नंबर मैं दे एक दिया बार है। और चेक करूं, प्लीज गिव मी वन सर, मिनट हाँ, मेरा भी प्रॉब्लम यही हो रहा है सर। नहीं हुआ ठीक है है। जब वो उसको ओपन कर रहे हैं तो। और में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ही कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं दोबारा अभी शेयर कर रहा है, आप एक चेक कर लीजिए ये फॉर्म। मैं चैट बॉक्स में अभी शेयर किया। सर, ये फॉर्म दोबारा भरना है क्या, गूगल फॉर्म? हाँ नहीं, आप प्लीज दो, आपने अभी ऑलरेडी फिल कर चुका है तो आप प्लीज ये तीनों में इंटरेस्टेड फिल कर लीजिए। बिकॉज आप हमारा सोच है कि दैट कोई भी पूरा समय हमारा 1 या 1.5 आवर्स हमारे साथ नहीं है, तो वो फिल करने के लिए ही हमने रिक्वेस्ट कर रहा है। आप दोबारा फिल कर लीजिए, दिक्कत नहीं है प्लीज। ओके ओके, मुझे लगा कि ये अलग अलग फॉर्म के लिए है, ये जैसे नहीं आपका नहीं, हम एक ही गेहूं फॉर्म के है लिए या सर, एक ही फॉर्म खेती है, के लिए। एक ही में। ठीक है। ठीक है, फिर अपडेट।
थैंक यू। अभी हम थर्ड स्टार्टअप नियोपर्क हमारे साथ है। ये हम मैंने पहले बोला ये बहुत इनोवेटिव स्टार्टअप है और सॉइल टेस्टिंग का एरिया में बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशन आप सभी के लिए नियोपर्क के पास है। रिगार्डिंग दिस आई वुड रिक्वेस्ट को फाउंडर फ्रॉम नियोपर्क to join us and present the offering to the FPOs today who are present with us. Vishal, you would be able to share your screen, right? You know, let me know if you need any. या Yeah, या done. Thank you, विशाल। सभी एफपीओज हमारे साथ विशाल जी है नियोपर्क से। प्लीज अभी नियोपर्क ने प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा है, आप प्लीज देख लीजिए और कोई भी प्रश्न है तो प्रेजेंटेशन के बाद आपके समय है पूछ लीजिए। थैंक यू। ओवर टू यू विशाल। ओके, थैंक यू विजय। सो मैं विशाल हूँ, मैं न्यूपर्क में काम करता हूँ। आई एम अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव एट न्यूपर्क। न्यूपर्क इज अ स्टार्टअप बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, और हमने एक ऐसा सॉइल इंटेलिजेंस डिवाइस बनाया है जो सिर्फ 4 मिनट में मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स जान सकता है। तो हम 2019 में स्टार्ट किए थे, और सिंस देन वी हैव वर्क विद एस्टीम पार्टनर्स लाइक मकैन, आईटीसी, टाटा एंड मेनी मोर। और अब तक हम 20,000 से ज्यादा मिट्टी के सैंपल्स की जांच की है, जो लगभग 35,000 एकड़ जमीन को कवर करता है। दिस इज आवर डिवाइस, एज यू कैन सी हियर। या दिस इज आवर डिवाइस। काफी हल्का है और छोटा है। इट कैन टेस्ट सॉइल ऑन 12 डिफरेंट पैरामीटर्स, जो कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन, ईसी, पीएच वैल्यू, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सॉइल टेस्ट करवाना ही क्यों जरूरी है, राइट? तो आज तक तो बिना सॉइल टेस्ट के काम चलता आया है, तो आगे भी तो चली जाना चाहिए था। तो इसका जवाब ये है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2022 से अब तक खाद की कीमत में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है, और आगे जाके ये और बढ़ता जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इससे सॉइल टेस्टिंग का क्या लेना देना। सॉइल टेस्ट से आपको ये पता चलता है कि आपकी मिट्टी में कौन सा न्यूट्रिएंट कम है और कौन सा ज्यादा है। जब आपको ये मालूम होता है तो आप बिल्कुल सही और संतुलित मात्रा में खाद डाल सकते हैं। अब इससे आपका फर्टिलाइजर कॉस्ट तो कम होता ही है, और आपका मुनाफा भी बढ़ेगा क्योंकि पैसे कम लगेंगे। यानी जितना कम पैसा खाद पर लगेगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मिट्टी की हेल्थ अच्छी है तो उसकी उपज भी बढ़ेगी। तो इसीलिए सॉइल टेस्टिंग के बाद फार्मर्स की नेट इनकम में 40% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। तो दिस वाज अबाउट व्हाई वी डू सॉइल टेस्टिंग। अब आप वी जनरली डू सॉइल टेस्टिंग फ्रॉम केमिकल लैब, जो अभी है हमारे इंडिया में लगभग लगभग 1500 केमिकल लैब्स हैं। तो आप उनसे ना करा के हमसे क्यों करवाएंगे? तो इसका जवाब भी मैं आपको अभी दे देता हूँ। हमारा डिवाइस जो है वो सभी कमियों को पूरा करता है, जो एक किसान लैब से टेस्ट कराने में पाता है। जैसे कि अगर आप कभी लैब से अगर अपना रिपोर्ट देख लेने के लिए गए होंगे फॉर सॉइल टेस्टिंग, तो उनको हफ्ते लग जाते हैं। हम 4 मिनट से भी कम समय में रिपोर्ट तैयार करते हैं। हम हमारी एक्यूरेसी लगभग लगभग 90 टू 95% है, और हमें आईकार, एनबीएसएस एंड एलयूपी द्वारा प्रमाणित किया गया है। अब हम कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल्स नहीं यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। और ये डिवाइस इतना छोटा है कि आप इसको किधर भी ले जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो अगर मैं आपको सिर्फ एक सॉइल टेस्ट दे दूं, सॉइल रिपोर्ट दे दूं, जिसमें सिर्फ ये लिखा रहे कि आपकी मिट्टी में कितना नाइट्रोजन है और कितना कार्बन है, उससे आपको क्या फायदा होगा, है ना? तो इसलिए हम केवल रिपोर्ट्स नहीं देते हैं, बल्कि फर्टिलाइजर्स की सटीक सिफारिशें भी देते हैं। कब, कितना और कौन सा खाद उपयोग करना है, हम ये सब बताते हैं। हर रिपोर्ट में हमारा हेल्पलाइन नंबर भी होता है, ताकि किसान कभी भी सलाह या मदद के लिए हमसे संपर्क कर सके। हमारा जो रिपोर्ट है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो ये हमारा पहला पेज है, जिसमें हम सारी चीजें दिखाते हैं कि आपके पास कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, कितना होना चाहिए। और जैसा कि ये सारे लोकल लैंग्वेजेस में मिलता है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए। नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप अगर इसे कॉल करेंगे तो वो कॉल हमारे पास डायरेक्ट आएगा, हम उसी टाइम इसे पिकअप करके आपकी सारी प्रॉब्लम्स को पूरी करेंगे। तो जो दूसरा पेज है, जो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम ये भी बताते हैं कि आप कौन से फर्टिलाइजर्स डालेंगे, कितना डालेंगे, कब डालेंगे।
ये आप भी हमें बता सकते हैं कि आप ये क्रॉप डालना चाहते हैं, ये फसल डाल रहे हैं, और आपको ये वाले फर्टिलाइजर हमेशा से डालते हैं, आपको यही डालना है। तो हम उस हिसाब से भी अपने रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं। तो ये हमारा डिवाइस है, ये कुछ ऐसा दिखता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत छोटा सा है। ये टेबल कुछ 4 फीट का है, इतने से ही जगह पे ये पूरा काम हो जाता है। कहीं भी रख सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं। हमारा डिवाइस जो है वो प्रिंसिपल ऑफ लाइट पे वर्क करता है। अब इसके डिटेल में ना जाके मैं आपको इसे उपयोग कैसे करते हैं वो बताना चाहूंगा। अ, तो ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा डिवाइस कैसे काम करता है। तो ये हमने वो थोड़ा सा सॉइल सैंपल डाला कप होल्डर में। और हमने इसे अपने डिवाइस के ऊपर रख दिया। अब हमारा जो सेलफोन से अपने डिवाइस को, आप किसी भी सेलफोन से आप अपने हमारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। हम 2 ऐप देते हैं जिसमें आप किसान की जानकारी दर्ज करते हैं और उससे सैंपल आप स्कैन करते हैं। इसको 10 बार रोटेट करना है उस उस ऐप पे जाके, और आपका स्कैन हो गया, और इसी में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। तो ये इतना सिंपल और इतना आसान था। 4 मिनट में आपका पूरा काम हो जाता है। आपको बस उसके ऊपर सॉइल सैंपल डालना है, एंड यू आर डन एंड यू आर गुड टू गो। तो जैसा कि मैंने बताया, हम 2 ऐप देते हैं। आप उन दोनों ऐप पे किसान की जानकारी डाल सकते हैं। हम एक डैशबोर्ड भी देते हैं जिसपे आप सारे प्रोजेक्ट देख सकते हैं, लेकिन वो छोड़ते हैं। हमने अभी तक जितना काम किया है उनसे हमें काफी चीजें सीखने मिली हैं, और जो फार्मर्स थे उन्हें भी काफी फायदा दिखा। तो जैसा कि आप पहला देख सकते हैं, रोहिदास पवार जी, ये महाराष्ट्र के एक फार्मर है। तो इन्होंने हमारे साथ काम किया था। हमने इनका सॉइल टेस्ट किया था, और उस सॉइल टेस्ट की वजह से इन्होंने खुद बताया कि जो इनका इनकम था उसमें 16% की बढ़ोतरी हुई थी। 7,000 पर कुंटल उनको फायदा हुआ था। ये सिर्फ एक ही नहीं है, ऐसे काफी ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने हमें ये सब चीजें बताई हैं। और दिस इज व्हाट वी प्रोवाइड। तो दिस वाज माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विशाल जी, ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। और मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है विशाल जी। ये सभी एफपीए के लिए बहुत यूजफुल होगा, ये नियोपर का एक सॉइल टेस्टिंग सॉल्यूशन सर। ये कॉस्ट कितना है एक किट का? और कैसे एक किट के साथ सिर्फ एक बार सॉइल टेस्टिंग हो जाएगा, या कहीं एक एफपीओ ने वो खरीद कर वो सारी मेंबर्स के लिए सॉइल टेस्टिंग का सर्विसेज दे देगा, या कैसे है सर? ये थोड़ा क्लैरिटी हमको मिलेगा तो और अच्छा हो जाएगा हमारा एफपीओस के लिए सर। जी जरूर विजय जी। तो जैसे कि एक एफपीओ है, उन्होंने हमसे एक डिवाइस लिया। तो हम अपना डिवाइस जनरली नहीं सेल करते हैं, क्योंकि सॉइल टेस्टिंग जो है वो बहुत ओकेजनल है, जैसे सीजनल है। आप उसको हर एक फसल लगाने से पहले यूज करते हैं, आप उसे हमेशा यूज नहीं करते। तो अगर आप हमारा ये डिवाइस खरीदते हैं, जो कि हम बेचते भी हैं, तो वो पड़ा पड़ा रह जाएगा, उसका कोई काम नहीं होगा। तो इसलिए हम इसे रेंट करते हैं। तो जो एफपीओ है वो हमारा डिवाइस जो है वो रेंट पे ले सकता है। उसके बाद उनके पास जितने फार्मर्स हैं वो उनका सॉइल टेस्ट कर सकता है। तो ये जो रेंट हम देते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने फार्मर्स हैं। हम 1 महीने के लिए देते हैं, 2 महीने के लिए देते हैं, एक क्वार्टर के लिए भी देते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आपकी नीड क्या है, कितने सॉइल टेस्ट हैं। अगर आपके पास 2,000 3,000 सॉइल टेस्ट करने हैं, तो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में तो हम आपको 2 या 3 डिवाइस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर मुझे ये बताना हुआ कि आपको हम कितने रुपए में ये डिवाइस दें, तो उसके लिए मुझे ये जानना जरूर पड़ेगा कि आप कितना सॉइल टेस्ट कराना चाहते हैं, कितना क्वांटिटी होगा। क्योंकि उससे हमें अच्छे 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 तरीके से जानकारी मिलेगी कि हम कैसा सर्विस प्रोवाइड करेंगे। नाउ दूसरी बात ये कि एक एक अब जैसे कि सिर्फ एक सैंपल के लिए मैं ये आपको डिवाइस नहीं दे सकता हूँ। जैसे आपके पास 500 फार्मर्स हो, 600 फार्मर्स हो, 300 फार्मर्स हो, तो फिर ये डिवाइस आपके लिए, एफपीओ के लिए अच्छा है। हम डायरेक्ट एफपीओ को ही देते हैं ये डिवाइस। तो ऐसा है। तो मुझे वो जानना पड़ेगा कि आपके को 1,000 सैंपल कराने हैं या 2,000 कराने हैं। तो उस हिसाब से ही मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन फिर भी लगभग लगभग एक सिंगल सैंपल अगर मैं बात करूँ तो वो 150 से 200 रुपए के बीच में आता है। लेकिन फिर वो डिपेंड करेगा कितने सैंपल।
ठीक है। सो एक बार एक सॉइल टेस्टिंग करने के लिए 150 से 200 के आसपास ही कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, करेक्ट सर? जी जी। ओके सर। और सर, एक मिनट सर, और अगर ये रेंट पे अगर मुझे चाहिए होगा तो ये कैसे मुझे अवेलेबल हो सकता है? ये मेल करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देखिए यहाँ सामने जैसे मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप इस पे अगर कॉल करेंगे तो मैं ही मतलब आई एम द पर्सन दैट यू वांट टू टॉक टू, मैं ही आपको ये डिवाइस प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आप बस मुझे अच्छा। व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिए, कॉल कीजिए कभी भी, और हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। एक दूसरा क्वेश्चन है एफपीओ के बारे में रिगार्डिंग सॉइल टेस्टिंग। सर ये कितने कितने एकड़ जमीन के लिए करना है, लाइक यू नो, मैं पूछ रहा है कि हर एक क्योंकि हमारे साथ है एफपीओ मेंबर्स, सभी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, किसी के पास 1 बीघा है, किसी के पास 5 बीघा है, और सिर्फ 10 बीघा के अंदर ही ज्यादा फार्मर मेंबर के पास है। और आपको पता है कभी कभी, कभी नहीं बहुत ज्यादा समय है, एक पूरा ब्लॉक या एक पूरा डिस्ट्रिक्ट और एरिया में एक ही वैरायटी ऑफ क्रॉप का खेती बाड़ी का काम चल रहा है। और इसका कारण है कि उसका सॉइल भी बहुत सिमिलर टाइप है इन अ पर्टिकुलर एरिया। सो अभी मेरे 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 सामने भी मेरे पास 2 बीघा 3 बीघा का जमीन है, और मेरा नेबर के पास उसके पास 2 बीघा है, और हम हमारा जमीन पास में है। और अलग अलग रिजल्ट आ जाएगा सर, मेरा जमीन टेस्ट करने में, सॉइल टेस्टिंग करने में, और उसका जमीन सॉइल टेस्ट करने में। या कितना एकड़ के लिए एक बार सॉइल टेस्टिंग करना है सर, ये भी थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारा मेंबर्स का क्लैरिटी मिलेगा कितनी बार करना है, कितनी एरिया में करना है। ये भी मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी। अ, विजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सॉइल एक ऐसी चीज है। अभी रिसेंटली मैं एक पढ़ भी रहा था, उसमें ऐसा था कि अगर आप 100 मीटर दूर जाएंगे तो सॉइल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। 100 मीटर नहीं, बल्कि आप अपने खुद के जमीन की अगर मिट्टी को उठाते हैं तो एक का अलग रिजल्ट आएगा और दूसरे पार्ट का अलग रिजल्ट आएगा। तो अगर आपके पास 10 बीघा है तो हम टेस्टिंग के लिए जो सैंपल्स उठाते हैं वो ऐसे उठाते हैं कि हम पूरे लैंड के ऊपर लगभग लगभग 1 एकड़ के लैंड से हम एक सैंपल निकालते हैं। तो हमारा एक पूरा उसमें तरीका है जो कि स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जो सारे केमिकल लैब्स भी फॉलो करते हैं। वो करते क्या है कि वो पूरे मैदान का खेत का सॉइल उठाते हैं, उसको फिर 4 भाग में डिवाइड करते हैं, उनको मिक्स करते हैं ताकि वेरिएबिलिटी कम हो, ताकि जो मिट्टी के अंदर जो अलग अलग वो उनकी चीजें हैं वो मिक्स हो जाए, और ताकि हमें जो रिजल्ट हो वो एक समान मिले। तो अगर आपके पास 1 एकड़ से कम जमीन है तो आपको बस एक सैंपल चाहिए होगा। अगर आपको 1 एकड़ से ज्यादा है तो फिर आप उससे ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि 10 बीघा, 5 बीघा, 2 बीघा, उसके लिए एक सैंपल काफी है। आप एक सैंपल चाहिएगा तो अपने खेत के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और वो सही होगा। ठीक है सर। और सॉरी, और दूसरा एक क्वेश्चन भी मेरा दिमाग में आ रहा है। एफपीओस को भी समय दे देंगे आज, समय है हमारे पास, अभी सिर्फ 4 बज रहे हैं। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आपने कभी किसी एफपीओ के चाहिए सर ये सर्विस टू देयर मेंबर्स, नियोपर का ये सॉइल टेस्टिंग सॉल्यूशन देने के लिए उसका मन है और अपॉर्चुनिटी है वहाँ, आप ये कैसे टेस्टिंग करना है एक पायलट करके वो सीईओ को, विल यू बी एबल टू डू अ पायलट एंड शो द सीईओ हाउ टू डू इट? सो कहीं नेक्स्ट राउंड ऑफ सॉइल टेस्टिंग दे विल बी एबल टू डू इट अपने आप खुद ही करने के लिए, सीईओ अकाउंटेंट एफपीओ स्टाफ के लिए आप कैसे करना है एक पायलट करेगा? और दूसरा क्वेश्चन है कि ये क्या है सर, वो एफपीओ के ऑफिस में भी ये टेस्टिंग होना पॉसिबल है, या ये इक्विपमेंट को फील्ड में लेके करना है, कैसे है सर? ठीक है विजय जी। देखिए, जब हमने बोला था कि मैंने प्रेजेंटेशन के टाइम में बोला था कि हम एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, हमारे प्रेजेंटेशन में लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम आपको डिवाइस देते हैं तो उसको उसके हम स्टार्टिंग से आपको सारी चीजें बताते हैं। जैसे कि आपने वो वीडियो देखा था,
उतना सा ही प्रोसेस है, लेकिन हम फिर भी स्टार्टिंग से लास्ट तक आपके साथ रहते हैं और आपको सारी चीजें बताते हैं। अब जैसे कि ये डिवाइस मैं आपको देने आऊंगा, तो उस टाइम हमारी टीम का आदमी, ही विल टीच यू एवरीथिंग। आपके एफपीओ में अगर कोई आदमी है जो ये सीख जो जो ये इसको देखेगा, हम उसे सारी चीजें सिखाएंगे। 2 से 3 घंटे में वो सारी चीजें सीख जाएगा। तो ये हमारा काम है, ये हम सिखाते हैं, हम खुद आके सिखाते हैं। दूसरी बात, आपने बोला कि ये आप फील्ड पे ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। तो हाँ, ये आप फील्ड पे ले जा सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है फील्ड पे ले जाने की, कि अगर आप किसी फार्मर के पास गए, आपने उसका सॉइल टेस्ट किया, फिर वहां से दूसरे अगर आप खेत पे जा रहे हैं, तो आपको 1 घंटे, आधे घंटे से 1 घंटे लगेंगे पूरा काम करने में, क्योंकि आप जाके तुरंत टेस्ट करके तो वहां से भाग नहीं जाएंगे। आपको टाइम लगना ही लगना है, कम से कम 15-20 मिनट तो लगेगा। लेकिन अगर आप एक जगह पर सारे सॉइल सैंपल्स को इकट्ठा करते हैं अपने ही गांव में, अपने ही एफपीओ के पास एक जगह पे अपना टेबल लगाते हैं और वहां पर सारे सैंपल्स को लाके रखते हैं, और फिर उसके बाद उसको टेस्ट करना शुरू करते हैं, तो आप एक दिन में 100 सैंपल से लेके 150 सैंपल्स टेस्ट कर सकते हैं आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम की, क्योंकि एक सैंपल 4 मिनट से भी कम टाइम लेता है। लेकिन अगर आप फील्ड पे जाएंगे, तो फिर उसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपको फील्ड पे जाना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ से तो यही रेकमेंड रहता है कि आप जितना रुक के उसे काम करेंगे, उतनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो ठीक है। और ये दूसरा बात है कि ये टेक्नोलॉजी समय लगेगा रिजल्ट के लिए, और इट इज बेस्ट दैट फार्मर मेंबर्स आर ब्रिंगिंग देयर सॉइल सैंपल्स टू द एग्जैक्टली। एफपीओ ऑफिस, एंड दे आर एबल टू डू इट। हाँ, एंड इन या अ डे 100 सैंपल का टेस्टिंग करना पॉसिबल है। सही है बहुत सर? आराम से। या ओके, ठीक है। और थैंक सर यू। ये अभी बोल रहे थे सर, हाँ, एक और क्वेश्चन था सर कि प्लीज। जैसे मान लीजिए अगर हम आज के डेट पे अगर आपको व्हाट्सअप करते हैं कि सर हम्म। मुझे ये डिवाइस की जरूरत है, तो ये मुझे कितने दिन में अवेलेबल हो जाएंगे? अ, अगर मुझे आप आज बोलते हैं और आप मुझे बोलते हैं कि नवंबर के स्टार्टिंग में चाहिए, और अगर वो हमारे लोकेशन से पास हुआ, आने जाने का टाइम है, और आपसे बातचीत करके हमें सब कुछ जानना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है, क्या एरिया है, कितने फार्मर्स है, बस उतना सा चीज है, इसमें और कुछ अलावा नहीं है। उसके बाद ये प्रोसेस अगर आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसको 3 दिन में आप कर सकते हैं और आप चौथे दिन आपके पास डिवाइस होगा। आप चाहे तो 2 हफ्ता भी ले सकते हैं। ये हमारे तरफ से तो जैसे ही आप बोलेंगे, हम वैसे ही डिवाइस उठा के आपके पास ले आएंगे। हमारी टीम भी अच्छा। आएगी आपके पास, आपको सारी चीजें सिखाएगी, और वो हम वापस चले जाएंगे, और उसके बाद आप डिवाइस यूज कर सकते अच्छा, ठीक है सर। किसी के पास कोई और एफपीओ के पास कोई प्रश्न है नियोपर का सॉइल टेस्टिंग सॉल्यूशन में? ये कभी यूज करना है, कैसे उससे फायदा उठाना है? सर, विशाल जी ने प्रेजेंटेशन में देखा, वो प्रोडक्टिविटी और यील्ड इम्प्रूव किया, और देर इज अ इनकम भी बढ़ गया हमारा फार्मर मेंबर्स के लिए। हम सब उसी इनकम इम्प्रूवमेंट और इनकम जनरेशन के लिए काम कर रहा है ना। हमारा सारा एफपीओ का गोल है कि इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव्ड इनकम फॉर आवर फार्मर मेंबर्स, वही हमारा प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मिंग एन एफपीओ एंड रनिंग इट। सो ये तीनों आज हमने देखा, तीनों सॉल्यूशन या टेक्नोलॉजी ने ये एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा फोकस किया, कैसे आपका प्रोडक्टिविटी या यील्ड इंप्रूव करना है फार्मर मेंबर का जमीन पे, और कैसे रिस्क कम करना है, कैसे वो पेस्ट के कारण से या क्लाइमेट, बारिश के कारण से या कोई भी धूप के कारण से है, वो रिड्यूस करना है। पानी का उपयोग कम करना है, हम बिजली में हमने खर्चा कम करेगा, मोटर कम समय चलना है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट सेविंग और यील्ड इम्प्रूवमेंट के बारे में तीनों टेक्नोलॉजी ने बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दिया। ह्यूमन वेंचर्स ने एनिमल हस्बेंड्री में कैसे हमारा गोट, बकरी का वो हेल्थ इंप्रूव करके कैसे ज्यादा फायदा उठाने में, और हाइजीनिक हाइजीनिक रखने में, और टाइमली हमारा इंफॉर्मेशन हमारे साथ आ जाएगा, हमारा बकरी का हेल्थ का इंफॉर्मेशन। ये सब में हमने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आप सभी ने देखा, और बहुत यूजफुल है। और हमारा कोर प्रिंसिपल या कोर फंक्शन ऑफ द एफपीओ को डायरेक्टली टारगेट किया बाय सेइंग दैट हमने हमारा फार्मर मेंबर का बहुत ज्यादा इनकम इंक्रीज हुआ, और उसका कॉस्ट भी कम हुआ, और बहुत ज्यादा फायदा है। सो ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन
क्वेश्चन है, किसी के पास कोई भी प्रश्न है ये तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में? अभी तो सिर्फ नियोपर्क का नहीं है, आप प्लीज कोई भी तीनों टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। सुशांता जी, थैंक यू फॉर रेजिंग योर हैंड। और बिफोर बिफोर आई पास इट ऑन टू सर एफपीओ फॉर क्वेश्चन, सर प्लीज सभी ने सर ये गूगल फॉर्म तो प्लीज फिल कर लीजिए, आपका इंटरेस्ट हम कैप्चर कर रहा है और आपका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन तीनों टेक्नोलॉजीज के साथ हम शेयर करेंगे। प्लीज सर सुशांत जी, हाँ श्रीकांत मेरा जी। प्रश्न है सरिया से है सर, गिरिडीह झारखंड। सर एक सवाल अभी ये है कि हम लोग अभी आउटपुट जो धान होता है सर, अभी पैडी जो हो रहा है अभी, धान धान पैडी, सर इसका जो अभी हम लोग पहले बेचते थे सर, तो इसका मॉइस्चर हम लोग ठीक से नहीं चेक कर पाते थे कि मॉइस्चर मेरा कितना, जब मिल में भेजते थे तो लोगों को बहुत सारा कट जाता था। और यहाँ पे रेट जो गिरिडीह जिला में है, 2-3 मिलें हैं जो रेट हम लोग को काफी कम मिलता था, जो कि हम लोग दीदी लोग को काफी कम लाभ दिला पाते थे। तो हम लोग सर बड़ा मार्केट, जैसे हम लोग लगभग 40-50 ट्रक धान बेच देते थे यहाँ से। तो जब रेट की इश्यू की वजह से हम लोग दीदी को ज्यादा लाभ नहीं दिला पा रहे थे। हम लोग को चाह रहे हैं कि बड़ा मार्केट मिले, जैसे बर्धमान हो गया, कलकत्ता वगैरह में, बर्धमान वगैरह, वहाँ पे ज्यादा, वहां से डायरेक्ट हम लोग को कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। कॉन्टैक्ट करने मतलब हम लोग यदि माल भेज भी दें तो पैसे फंसने की संभावना ज्यादा रह जाता है कि हम लोग किससे कॉन्टेक्ट करें, जो दलाल वगैरह रहता है उनसे। तो ये सर एक थोड़ा सा लिंकेज यदि हो पाता तो ये अति उत्तम रहता। एक मॉइस्चर का, जो मॉइस्चर से हम लोग को धान नहीं कटे, जैसे हम लोग लिए 50 किलो, पता चला ये आपका मॉइस्चर है 20 किलो ही, वहाँ पे वेरीफाई हो पाया तो नहीं हो पाया, रिजेक्ट होकर आ गया। वो सर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है अभी, जो दीदियों को हम लोग लाभ सही टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं, जो बिचौलिया के हाथ में चला जा रहा है। इसके लिए सर थोड़ा सा प्रोवाइड करवाना होगा। हाँ ठीक है, समझ रहा है सर श्रीकांत जी आपका दिक्कत क्या है, हम समझ रहा है। ये अभी तीनों स्टार्टअप के डायरेक्टर नहीं है ना, ये तीनों स्टार्टअप का टेक्नोलॉजी तो अलग है। आप हाँ फिर हाँ सर। आपने पूछ रहा है वो तो सही, दिक्कत तो समझ रहा है हम्म, हमको, वो हम्म, रियल इश्यू है। उसके हम्म, लिए हम दूसरा सेशन में हम हाँ सर। कोई भी टेक्नोलॉजी है वो आपका प्रॉब्लम, सभी का प्रॉब्लम भी है, ये सिर्फ हम्म, आपका नहीं है। इसके जी लिए सोल्यूशन किसी के पास है तो वैसे भी टेक्नोलॉजी हम ढूंढ के आपके पास एक और ओके। शोकेस इवेंट में करेंगे। जी सर। फिर अभी है समय, ये तीनों स्टार्टअप या तीनों टेक्नोलॉजी हमने देखा, ह्यूमन वेंचर्स का गोठशाला और उसका पूरा ऑफरिंग्स है, और न्योपर का सॉइल टेस्टिंग ऑफरिंग, और खेती का ग्रीन हाउस सोल्यूशन है। इसी के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो कैसे क्वेश्चंस है तो आपको कोई कहाँ कहाँ पास में, आपके जगह के पास में कहीं पायलट हुआ इस टेक्नोलॉजी का, उसका उसके साथ बात करने के लिए आपको चाहिए तो यही सही जगह है पूछने के लिए। कोई भी कॉस्ट के रूप में आपको कोई प्रश्न है तो ये समय सही है आप पूछने के लिए। इसी तीनों टेक्नोलॉजी के रूप ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सिर्फ आप नहीं, किसी एफपीओ रिप्रेजेंटेटिव के पास है तो पूछ लीजिए प्लीज। मैं पूछ लूं जब तक एपीओस प्रिपेयर हो जाए, विजय जी। हाँ सुशांत है जी। हाँ खेती, बताइए। खेती से एक्चुअली ये सवाल था। हाँ पूछ लीजिए। जनरली जनरली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या उस तरह का एनएचएम वगैरह या एनएचबी में सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट अवेलेबल होता है ये सेडनेट वगैरह के लिए। ये बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है, एक्चुअली हम लोग एक्सप्लोर भी कर रहे थे इसको लेने का। तो क्या सब्सिडी का जो कंपोनेंट है अ, वो इसके साथ इस टेक्नोलॉजी के साथ वो अप्रूव्ड है क्या, या फिर उनका जो ट्रेडिशनल वाला मेथड है वही वही है उसमें? वो थोड़ा पूछना चाहता था मैं खेती से, ये वेरी वाला गुड। टेक्नोलॉजी। हाँ, जी। वेरी गुड क्वेश्चन। सो अभी हम करंटली, अभी जैसे मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, कार से ही आपको प्रेजेंट किया था, एमपी आया था उज्जैन। तो अभी हम एमपी गवर्नमेंट के साथ 350 यूनिट लगा रहे हैं सब्सिडी में। तो उधर ये कॉस्ट इतना ही है, वहाँ पे 62,000 गवर्नमेंट दे रहा है, 30,000 फार्मर देता है, एंड बाकी हमारा कॉस्ट रहता है। तो यस, ये सब्सिडी में हम गवर्नमेंट के साथ पीपीपी पार्टनरशिप में कर रहे हैं। और ये हमने पहले भी किए हुए हैं, उड़ीसा में किया हुआ है, और झारखंड में किया हुआ है, बिहार में किया हुआ है, आंध्रा में किया हुआ है। सो यस, ये सब्सिडी के थ्रू भी हम गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके ये करते हैं। बट ये इंडिविजुअल को है, एक बार आप चेक कर लेना, बट इट्स अप्रूव्ड बाई लाइक सेंट्रल।
कि खेती का जो रक्षक ग्रीन हाउस है वो पूरा इंडिया के लिए अप्रूव्ड है कि ये एज पर स्टैंडर्ड। तो उड़ीसा के लिए ऑलरेडी अप्रूव्ड है। हाँ हाँ, उड़ीसा में हमने ऑलरेडी सिक्स हंड्रेड सर सर लगाए हुए गवर्नमेंट सब्सिडी में। ओके, थैंक यू। सर इनु सर से एक सवाल है। हेलो सर। हाँ सर बोल। जो ग्रीन हाउस के लिए बोले कि 62 दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है, 30% हम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, और 8% शायद 30,000 लगाना है किसान सर। दे रहा है। हाँ, एट कितना सर, कितना? 30,000 किसान से ले तो ये प्रोजेक्ट रहता है। जैसे हमने प्रोजेक्ट सबमिट किया एमपी गवर्नमेंट को 350 का, अच्छा अच्छा। उसमें इसका कॉस्ट है 1.24 लाख। क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है खुद का भी 1 साल तक फार्मर को देना, तो उसमें 50% गवर्नमेंट का सब्सिडी है, ठीक है। हम्म, 30,000 फार्मर कंट्रीब्यूशन है। रेस्ट ऑफ जो 26 है वो हमारा खेती का कंट्रीब्यूशन है। अच्छा अच्छा। वही सर, ग्रीन हाउस बट ये लगाना है ना? ऐसे के लिए नहीं है। और ग्रीन ग्रीन हाउस जो लगता है सर, वही ना? हाँ, ग्रीन हाउस। यस। ओके। ओके सर। बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, ये सभी के लिए यूजफुल है। और कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, ये सही। ओके, आई अभी आई थिंक देर आर नॉट एनी मोर क्वेश्चंस। मैंने अभी सभी को धन्यवाद बोल रहे। ओ नहीं, सॉरी, किसी के पास क्वेश्चन है। खुदीराम जी बताइए सर। सर बताइए सर। हेलो। ठीक है, आई थिंक इट मस्ट हैव बीन अ फॉल्स हैंड रेस। हाँ ठीक है। सभी को धन्यवाद। आज बहुत अच्छा सेशन था। बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन था। अराउंड 150 एफपीओ रिप्रेजेंटेटिव हमारा साथ था। बहुत अराउंड आई थिंक 80 प्लस। बताइए सर। हेलो शिवनाथ जी, हेलो। कोई क्वेश्चन है सर? हाँ बताइए सर। हाँ सर, इनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स एक बार शेयर कर हाँ दीजिएगा। हाँ ठीक है सर, वो कांटेक्ट डिटेल्स आप सभी के साथ आ जाएगा। हमने वो, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वी विल शेयर इट विथ यू। बट इसके अलावा कोई क्वेश्चन है सर? सर फिलहाल तो ठीक है, नहीं। ठीक है। सो Okay, so अभी we are near the end of the session, and I would like to thank everyone. सभी को thank you. ये बहुत अच्छा सेशन था, and we have had three बहुत very useful, very effective solutions आज का सेशन में हमने प्रेजेंट किया आप सभी के साथ। और थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम and being here, both to all the technologies, the companies, Keti, Neopark, and Human Ventures, for being with us for the entire session, and also to all the members. We had over 150 participants, and it has been a very engaging session. सभी ने करेक्ट क्वेश्चंस और करेक्ट तरीके से आपने एंगेज किया हमारा स्टार्टअप से। और आपका एंथुजियाज्म और इंटरेस्ट इन द टेक्नोलॉजी आपका क्वेश्चन से हम सभी को दिख रहा था। और आज का सेशन के जैसे हमने 5 नवंबर 3 PM के लिए एक एफपीओ नाफपो एफपीओ शोकेस कर रहा है। यहाँ आई कार्ड के साथ हमारा इवेंट है, और ये आउटपुट मार्केटिंग में फोकस कर रहा है। आपका प्रोड्यूस को बेचने के लिए एक अपॉर्चुनिटी, मौका मिल रहा है। वो भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने प्लीज अटेंड कर लीजिए 5 नवंबर। हम उसी के बारे में आप सभी को हमने शेयर करेंगे लिंक फॉर ज्वाइनिंग। एंड बिफोर वी लीव टुडे सेशन, आई वुड लाइक टू थैंक मारिको इनोवेशन फाउंडेशन। केती और नियोपर्क का इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर है मारिको। मारिको ने बहुत
अच्छा काम किया ये दोनों एफपीओ ने आइडेंटिफाई करके हमारे साथ आज सेशन में प्रेजेंट करने के लिए। और थैंक यू मारिको फॉर बीइंग विद अस एंड सपोर्टिंग दिस initiative. I would thank Vartika and Arushi for enabling this session and to have the startups with us. And thank you सभी एफपीओ, आप सभी ने हमारे साथ बहुत पेशेंट था एंड वेरी एंगेजिंग सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव फिल्ड द गूगल फॉर्म, सभी ने फिल किया एंड आई एम शेयरिंग। और एक बार मैंने लिंक तो शेयर कर चुका है, आप प्लीज बिफोर यू फिनिश द सेशन, हमने 10 मिनट अर्ली सेशन खत्म कर रहा है। बहुत अच्छा सेशन था और बहुत यूजफुल, इट्स अ गुड थिंग। आप सभी के पास समय है अभी, प्लीज फिल द फॉर्म एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Sir, today already filled, sir. Thank you for filling. Yes. Very हाँ useful, sir. Yeah, Very useful. Thank you very much, sir. thank you. सबको धन्यवाद। सबको धन्यवाद, थैंक यू। विजय जी धन्यवाद। थैंक यू कार्तिकेयन जी, थैंक यू। विजय सर। या सर हम झारखंड पलामू चैनपुर से बोल रहे हैं। बताइए सर। सर यहाँ बुडी भी है पीसी से। सर ये बोल रहे हैं, जैसे अभी बात करते हैं आउटपुट के लिए, तो हम लोग के यहाँ सर आउटपुट की जरूरी भी है। यहाँ पर टीआरआई से जो संदीप सर भी हैं वो बात हम लोग रखे थे। मार्केट हम लोग को लिंकेज उस तरह से नहीं हो पा रहा है, हम लोग अच्छा, क्योंकि पिछला बार भी हम पैडी प्रोक्योरमेंट किए थे तो एक एवरेज 45 450 टन तक हम पैडी प्रोक्योरमेंट करके लोकल मार्केट में ही सेल किए थे। तो सर हम लोग को उस तरह से रेट नहीं मिल पा रहा है, सर फार्मर्स को भी हम लोग एफपीसी के माध्यम से रेट नहीं दे पा रहे, हम लोग का एफपीसी का उस तरह से प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो सर समझ अगर रहा है। जी, तो अगर हम लोग एक मार्केट चैनल चाहे सर अच्छा मार्केट एक मिल जाए बहुत अच्छा। तो उसके लिए सर हम लोग के यहाँ जो चैनपुर में ईवी टैग। जी हाँ, समझ रहा है सर, आपका आपका चैलेंज तो बहुत सही है। ये सिर्फ आपका नहीं है, सभी एफपीओ का है। वैसे लिए नाफ्पो ने हर एक दिन इसी चैलेंजेस का सॉल्यूशन के लिए ही काम कर रहा है। हमने जरूर और सेशंस भी एफपीओ शोकेसेस करेंगे और उसमें आउटपुट का फोकस भी ज्यादा लगेंगे। वी विल डू मल्टीपल नाफ्पो एफपीओ शोकेसेस, आपका आउटपुट मार्केटिंग के लिए अपॉर्चुनिटी और मौका के लिए हम कोशिश करेंगे सर। और हमारा सोच है कि दैट आप दोनों तरीके से, बहुत इनपुट साइड में और आउटपुट साइड में, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और सही टेक्नोलॉजी आपके सामने लेना है, उसी के लिए हम नाफ्पो में हमारा संस्था काम कर रहा है। सो आज का सेशन है प्राइमरली इनपुट के साइड में इम्पैक्ट करने के लिए, और आउटपुट का भी हम करेंगे सर। आपका चैलेंज तो डेफिनेटली अंडरस्टूड एंड वी विल डू एज मच एज वी कैन टू हेल्प यू विद इट सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।